Assalamualaikum NEET aspirants. Today we will study about equilibrium. Chemical equilibria are important in numerous biological and environmental process. For example, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिस रेट से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसी रेट से वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होती हैं। तो ये एक क्लोज सिस्टम के अंदर होता है, तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर ये होता ही रहता है तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इन द केस ऑफ वाटर, जब वाटर बॉयल होता है तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, और अगर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होती हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन होती है। और केमिकल इक्विलिब्रियम को फॉलोइंग क्लासेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में बी क्लासिफाइड इन 3 groups. The reaction that proceed nearly to completion and only negligible concentration of the reactant are left. Second condition होती है the reactions in which only small amount of product are formed and most of the reactant remain unchanged at the equilibrium stage. And third condition होती है, third group है the reaction in which the concentration of the reactant and product are comparable when the system is in equilibrium. Equilibrium may be solid to liquid. Solid to liquid, for example, melting of ice. Liquid to gas, or vapors, for example, boiling of water. Solid to gas, for example, camphor. Equilibrium involving dissolution of solid or gases in liquid. Solid in liquid, for example, sugar dissolved in water, or gases in liquid, for example, Coca-Cola. CO2 present in Coca-Cola. CO2 gas present in Coca-Cola. As you see some feature of physical equilibria. Liquid to vapor, for example, H2O. H2O constant at given temperature. So the boiling point of water is 100 degree centigrade. Then at 100 degree centigrade the H2O constant हो जाता है। फिर solid to liquid equilibrium, तो for example H2O solids to H2O liquid, मतलब melting of ice, तो melting point is fixed at constant temperature। तो melting point होता है 273 Kelvin of 273 Kelvin वाटर का, ठीक है। तो सॉल्यूट टू सॉल्यूट इक्विलिब्रियम, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर गैस टू गैस इक्विलिब्रियम, गैस टू गैस इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल CO2 इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया involving physical process. Number 1, equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. Both the opposing process occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. All measurable properties of the system remain constant. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value one of its parameters at a given temperature. The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium. You can see in the graph, the blue line show the product and red line show the reactant. तो क्रॉस से भी पहले की जो ग्राफ है वो शो कर रहा है, जहाँ पर दो लाइन क्रॉस करें उससे पहले क्रॉस करने से पहले की जो कंडीशन है वो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और क्रॉस के बाद की जो
लाइन है वो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई है वहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। एंड दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ ammonia reaction, and this is a graph of hydrogen iodide reaction. Law of chemical equilibrium and equilibrium constant. Equilibrium constant is denoted by Kc. Kc equal to concentration of product upon concentration of reactant, where Kc is equilibrium constant. इन द एग्ज़ाम्पल ऑफ HI, तो नंबर वन है केस के रिएक्शन के लिए नंबर वन रिएक्शन है H2 + I2 इक्वल टू 2HI। तो इसमें Kc इक्वल टू हो जाएगा 2HI की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे और H2 और I2 की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे, तो HI का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन H2 और I2 हो जाएगा इक्वल टू X निकल के आएगा। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा Kc इक्वल टू X हो जाएगा। उसके बाद अगर यही रिएक्शन उल्टी हो जाए, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाए, यानी 2HI इक्वल टू H2 + I2, तो इसमें प्रोडक्ट को H2 I2 को ऊपर रखेंगे और HI के होल स्क्वायर को नीचे रखेंगे, तो 1/x आ जाएगा। ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। और अगर इसके हम हाफ मोल लेते हैं, यानी हाफ H2 + हाफ I2 इक्वल टू HI एज कंडीशन 1, तो Kc डैश हो जाएगा। तो Kc डैश इक्वल टू में प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट को नीचे रखेंगे, तो Kc इक्वल टू Kc की पावर हाफ हो जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा। Kc डैश इक्वल टू हो जाएगा s की पावर हाफ और Kc की पावर हाफ, यानी हाफ रिएक्शन है ये, हाफ मोल की रिएक्शन। एज यू कैन सी इन द टेबल, A + B इक्वल टू CC + DD, दिस इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए Kc हो जाएगा। फिर CC + DD इक्वल टू AA + BB, तो इसमें ये रिवर्स रिएक्शन है, तो इसमें Kc डैश हो जाएगा 1/Kc। और अगर NAA + NBB इक्वल टू NCC + NDD, यहाँ पर N इक्वल टू नंबर ऑफ चेंज ऑफ मोल है, मतलब जितने मोल चेंज किए गए हैं, तो Kc डैश इक्वल टू हो जाएगा Kc की पावर N। ये फर्स्ट केस वाले में चेंज किए गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन में डायरेक्ट NCERT से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे HI के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन 2.4 × 10⁻² है और I2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 1.38 × 10⁻², और प्रोडक्ट अभी इनिशियल कंसंट्रेशन में 0 है HI का, और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम के जो चार्ट ये दिया गया है, H2 की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी और I2 की ये हो जाएगी और HI की ये हो जाएगी। तो जिस तरह से डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन होगा, उसी तरह डेटा के अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में स्टेट सेम रहती है, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड ही सारे रहेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेंगे और गैस है तो गैस रहेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सेम नहीं रहते, सेम कंडीशन नहीं रहती, डिफरेंट होती है। इस सिस्टम के लिए PV = nRT होता है, जहाँ पर PV = nRT होता है, यहाँ से प्रेशर निकल के आ जाता है, यानी कि P = N/V/RT। तो यहाँ पर R की वैल्यू है 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन। एज यू कैन सी इन द टेबल, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, 2S2 + O2 इक्वल टू 2SO3, N2O4 इक्वल टू 2NO2। तो इसमें जो टेम्परेचर है और Kp है वो देखने वाला है। तो टेम्परेचर जो है वो 298, 400 एंड 500 है N2 3H2 और 2NH3 की रिएक्शन के लिए। तो इसका Kp भी डायरेक्टली दिया हुआ है। इसी तरह 2SO2 + O2 2SO3 है, तो इसके लिए जो डिफरेंट टेम्परेचर है उसके लिए Kp भी फिक्स है। उसके बाद N2O4
इक्वल टू 2NO2, तो इसमें भी जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसके लिए Kp फिक्स है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो इसको इस चार्ट को देख करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होते हैं वो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसका आंसर एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और सारी बुक्स पढ़ते हैं, पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है। इफ़ Kc is greater than 10⁻³ products predominates over reactant, that is if Kc is very large the reaction proceed nearly to completion। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। द रिएक्शन ऑफ H2 विथ O2 एट 500 Kelvin हैज़ वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc इक्वल टू 2.4 × 10⁻47। ये रटना है क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आंसर पे टिक लगाकर आ जाएंगे। उसके बाद फिर बी वाला है H2 + Cl2, तो इसमें 2HCl, तो इसमें एट 300 Kelvin Kc इक्वल टू हो जाएगा 4 × 10⁻31। उसके बाद सी वाला एग्जाम्पल है H2 + Br2 2HBr, तो इस एट 300 Kelvin, तो यहाँ पर Kc इक्वल टू हो जाएगा 5.4 × 10⁻18। इसी तरह सेकंड कंडीशन है इफ़ Kc इज़ लेस दैन 10⁻³ reactant predominate over product, that is if Kc is very small the reaction proceed rarely। मतलब रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ए, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O into H2 and O2 at 500 Kelvin has a very small equilibrium constant। Kc इक्वल टू हो जाएगा H2O इक्वल टू H2 + O2 में, यानी कि वाटर के ब्रेकडाउन में, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा वाटर का ब्रेकडाउन एट 500 Kelvin, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 4.1 × 10⁻48। फिर N2 + O2 इक्वल टू 2NO, तो इसमें 298 Kelvin पर Kc इक्वल टू हो जाएगा 4.8 × 10⁻31। इफ़ Kc इज़ between 10⁻³ to 10⁻3, तो appreciable concentration of both reactant and product are present, मतलब appreciate concentration होगी प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की भी। तो for reaction of H2 with I2 to give HI, Kc इक्वल टू हो जाएगा 57 at 700 Kelvin। इसी तरह बी एग्जाम्पल है also N2O4 to NO2 is another reaction with which value Kc equal to 4.64 × 10⁻³ at 25° centigrade, which is neither too small nor too large। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये दिया हुआ है, और ये जो एग्जाम्पल है अगर इसको डायरेक्ट याद करके चले जाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर पर डायरेक्ट टिक लग जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा।